Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, this is grade 6 and I am your teacher, Muhammad Asif Musa Mansoor. My dear students, we have finished unit number 3 of our grammar club book, and right now we are starting unit number 4. My dear student, when we talk about unit number 4, so in unit number 4, the name of the unit is passives. Passives of the past simple. And by this is the complete name of the unit, unit number 4. My dear friends, first of all, we need to understand that what is the meaning of this word passive. What is the meaning of passive? Okay, so for understanding this word, I will be explaining you something and you will listen it, and after that, you would be easily understanding the concept of passives and the concept of passives, the past simple and by. Okay, so my dear students, when we talk about sentences, so there are two types of sentences. Okay, sentences are of two types. The first type of sentence, the first type of sentence, and another is second type of sentence. When we talk about the first type of sentence, when we talk about the first type of sentence, so first type of sentence that is called active voice. Okay, and when we talk about the second type of sentence, active voice, and when we talk about the second type of sentence, that is passive voice. Okay, so now जब हम sentences की बात करते हैं, तो sentences जो है उसकी दो टाइप्स पाई जाती हैं. sentences को हम दो तरह से जो है वो बोलते हैं. जो बोलने का तरीका है, जो बयान करने का तरीका है सेंटेंसेस को, वो दो तरीकों से हम बोलते हैं. एक तरीके का नाम जो है बेटा एक्टिव वॉइस है, और एक तरीके का नाम जो दूसरा वाला तरीका है उसका नाम पैसिव वॉइस है. अब हम मजीद आगे बढ़ते हैं कि एक्टिव वॉइस जो है उसको हम डेफिनेशन के हिसाब से क्या कहेंगे. व्हाट विल बी टेल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एक्टिव वॉइस, and what should we do and what should we say about the definition of passive voice. So when we talk about active voice, so active voice ऐसे sentences होते हैं जिसमें जो है सब्जेक्ट सब्जेक्ट जो है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, सॉरी बेटा, यूपी डूअर ऑफ एन एक्शन. Doer of an action. Okay, doer of an action is present. Okay, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमें पता चल रहा हो कि इस काम को करने वाला बंदा कौन है. ओके, let's suppose the example of active voices.
he is teaching me English. ही इज टीचिंग मी इंग्लिश। ओके, अगर हम इस सेंटेंस को देखते हैं तो इस सेंटेंस के अंदर जो है हमें काम करने वाला मौजूद नजर आता है, वो है ही। लेकिन अगर हम जब पैसिव वॉइस की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट पैसिव वॉइस, सो पैसिव वॉइस के अंदर क्या होता है, वी डोंट गिव इम्पोर्टेंस, और फिर मैं इसके साथ आपको बताता हूँ, वी डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू सब्जेक्ट, doer of an action, okay, and with this we we might not know the subject as well. Subject means doer of an action. Okay, so here यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं कि पैसिव वॉइस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं कि जिसके अंदर हमें शायद ये नहीं पता होता कि काम करने वाला कौन है, या चलो अगर हमें पता भी होता है काम करने वाला कौन है तो हम उसको फोकस नहीं करते, बल्कि हम जो काम हो रहा होता है वी फोकस ऑन ऑब्जेक्ट। ओके, वी डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू सब्जेक्ट, डूअर ऑफ एन ऑक्शन, और यहाँ पर अगर मैं इसके साथ लिखूं कि वी गिव इम्पोर्टेंस टू, वी गिव इम्पोर्टेंस, सॉरी, टू ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट, we don't give importance to subject, we give importance to object। okay, we might not know the subject, sometimes we might not know the subject, sometimes we don't give importance to the subject। okay, अब हम मजीद आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें पैसिव वॉइस की, तो मैं कहूंगा इंग्लिश, इंग्लिश इज बीइंग taught, इंग्लिश इज बीइंग taught to me, और मैं यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देता हूँ। या देखें, इंग्लिश इज बीइंग टॉट टू मी, इफ वी ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू उर्दू, सो मैं यहाँ पर इसकी उर्दू ट्रांसलेशन में कहूंगा कि मुझे इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। नाउ हु इज टीचिंग मी इंग्लिश, हु इज द डूअर ऑफ एन एक्शन, इट इज नॉट रिटर्न इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में ये नहीं लिखा हुआ कि डूअर ऑफ एन एक्शन कौन है, जबकि यहाँ देखेंगे इसमें लिखा हुआ है ही इज टीचिंग मी इंग्लिश, यहाँ पर डूअर ऑफ एन एक्शन मौजूद है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट a type of sentence in which doer of an action is present, so that type of sentence is called active voice। और ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर हम डूअर ऑफ एन एक्शन को ना बयान कर रहे हो, डूअर ऑफ एन एक्शन को ना फोकस कर रहे हो, डूअर ऑफ एन एक्शन को हम क्या कहते हैं जस्टिफाई ना कर रहे हो, सो दैट टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी हमने जो पहली हमारे पास हेडिंग है, जिस हेडिंग का नाम है पैसिव, ये वाली पैसिव, पैसिव, तो हमने पैसिव के बारे में ये देख लिया कि पैसिव क्या है। ठीक है, पैसिव के बारे में अभी हमने क्या देखा, पैसिव क्या है, पैसिव एक टाइप ऑफ सेंटेंस है। ठीक है, ये वो टाइप ऑफ सेंटेंस है कि जिस टाइप ऑफ सेंटेंस के अंदर जो है वो हम ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं,
ये वो टाइप ऑफ सेंटेंस है जिसके अंदर हमें नहीं पता होता कि काम करने वाला यानी सब्जेक्ट कौन है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, ओके। द सेकेंड हेडिंग इज द पास्ट सिंपल एंड बाय। ये बाय जो है ना, बाय, वो पैसिव वॉइस में क्या करते हैं हम जब अब अगर हमें सब्जेक्ट को लिखना होता है, मिसाल के तौर पे मैंने क्या कहा कि हमें पता होता है कि सब्जेक्ट कौन सा है, काम करने वाला कौन है, और हमें ये भी पता होता है कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को ज़्यादा अहमियत देने के लिए सबसे पहले लिखते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि ये चीज़ यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये जो है ना इंग्लिश यहाँ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इंग्लिश यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब हमने इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाया, तो अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए देखिए इंग्लिश यहाँ फर्स्ट कैटेगरी में आ गया। यहाँ पर इंग्लिश जो है वो पहले नंबर पर आ गया। जिस चीज़ को हम फर्स्ट पोजीशन पे लिखते हैं यहाँ पर, उसका मतलब ये है कि हमने इसको अहमियत दी है। तो यहाँ अगर हम देखें, पहले में हमने इसे ऑब्जेक्ट लास्ट में लिखा था, और सब्जेक्ट जो है, ये जो सब्जेक्ट आपके पास ही मौजूद है, वो फर्स्ट में लिखा था। तो फर्स्ट में लिखा था तो इसका मतलब ही को हम इम्पोर्टेंस दे रहे थे। लेकिन अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, पैसिव वॉइस के अंदर क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं। सो ऑब्जेक्ट का एच, ये क्या कहते हैं, इंग्लिश जो है वो सबसे पहले लिख दिया। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास पहली डेफिनेशन हो गई पैसिव वॉइस की। पास्ट सिंपल आपको मालूम है किसे हम कहते हैं, और पास्ट सिंपल के साथ बाय का क्या कहते हैं, आपके पास एक वर्ड है बाय, वो भी जो है वो आखिर में लगता है फॉर्मूले में, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अब आप मुझे जो है वो बताइए कि ये आपको समझ में आया। अगर समझ में आ गया हो तो फिर हम जो है मज़ीद आगे बढ़ते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ और फिर हम कुछ और आगे बढ़ते हैं। आप टेक्स्ट बॉक्स में जाइए और टेक्स्ट बॉक्स में जाके मुझे बता दीजिए कि हैव यू अंडरस्टूड दिस और नॉट। जी बेटा, if you have understood this, then I will erase this page and then we'll go to the next one. Thank you, Salik. There are 3 students, I think, in this group, and I request everybody. Yes, another student. I think the other students are not in a